the opposition in the Meghalaya Legislative Assembly. We have with us today Dr. Manas Bhaiya, the Honorable State in charge of All India Trinamool Congress Meghalaya TMC. We have the candidate from South Tura, Richard Marak, and our candidate from North Tura, Rupert Sangma. We have Chokpot candidate as well, Ladaru Sangma, Women President of Meghalaya Trinamool Mahila Congress, Selma Shira, Safford Sangma, and Mukul Das. I thank each one of you. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. আমি হিন্দি বাংলা ইংরেজি তিনটে মিলিয়েই বলবো যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়. I was listening to Dr. Mukul while he was speaking, and I realized that as Dr. Mukul has started losing his voice, on the other hand, Conrad Sangma has started losing his sleep. The kind of welcome and the gathering that this town and this part of the city has witnessed today is unprecedented. I was telling Richard, the kind of unwavering faith, support, the amount of love and blessings you have showered upon us, especially when we were walking past the entire route. I will personally remain indebted to the people of Tura till the last drop of my blood. And I would like to promise you that come what may, Trinamool is going to be with you and stand with you in this fight against this inept, inefficient and corrupt NPP government. We started our journey 1.5 years back, to be more precise. And we started this big membership drive about 8-10 months back. Since then, about 4-5 lakh odd members have associated with Trinamool Congress. जब से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिस तादाद में लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं, ये इसी बात का प्रूफ है कि आने वाले दिन में तृणमूल की सरकार बनना खाली समय का खेल है. And when the voting is conducted on the 27th of February and the results come out on the 2nd of March, today is 15th of February. We exactly have 15 days in hand. 13 days in February and 2 days in March. I would like to tell you that if Trinamool can do in Bengal, why can't Trinamool do in Meghalaya? If people of Bengal can teach BJP a lesson, why can't the people of Meghalaya teach BJP and NPP a lesson? Last 5 years, you have given them opportunity to serve you. Last 5 years, you voted for them, although the mandate was different. Till they formed the government, and you had a lot of hopes, aspirations, dreams in your mind. That at the end of the day, there will be some development, all-round development for the state of Meghalaya. People of Meghalaya will be benefited in a way. But last 5 years, before you go and exercise your franchise and exercise your voting right on the 27th of February, ask yourself a simple question. That is this the Meghalaya you wanted to see? Meghalaya doesn't need a puppet. Meghalaya needs a true leader who can stand for its own people. Meghalaya doesn't need a puppet who will bow down and dance to the tunes of his master sitting in the ivory towers of Delhi and Guwahati. Meghalaya needs a true leader who can fight for the people, who can fight for this land and who can fight for the right cause. Trinamool has raised this demand of inclusion of Khasi and Gado language in the 8th schedule of the Constitution. In the last 1 year, we have raised this in the Parliament thrice. 3 बार हम लोग ने इस मुद्दे को उठाया. 2019 में चुनाव हुआ, कांग्रेस का एक एमपी जीता,
और एनपीपी का एक एमपी जीता। 2 एमपी में एक एमपी भी ये मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। मेघालय से आज के दिन में हमारे पास एक भी एमपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये खासी और गारो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 3 बार संसद के अंदर हो बाहर हो हम उठा चुके हैं और आने वाले दिन में भी उठाएंगे। बंगाल में जीतने के बाद हम लोग ने जो वादे किए थे वो वादे हम लोग पूरे करके दिखाए। मेघालय में भी हम लोग वी कार्ड की बात किया, हम लोग माई कार्ड की बात किया, जहां पे जितने भी बेरोजगार युवाएं हैं सबको 1000 रुपए सीधा अपने बैंक पे हर महीने मिल जाएगा तृणमूल का सरकार बनाने के बाद। जितना भी परिवार है, हर परिवार का एक महिला को किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तृणमूल की सरकार जीत के आएगी 2 तारीख को और पहला कैबिनेट में हम लोग इसको पास करा के हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि वी कार्ड जो हम लोग प्लान किया है, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट कार्ड, उसमें जितने भी परिवार है हर परिवार का एक महिला सदस्य को महीने का 1000 और सालाना 12000 रुपया सीधा आपका बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। और ये सब वादे नहीं है, ये हमने करके दिखाया है, वेस्ट बंगाल में करके दिखाया है। सो दीज आर नॉट प्रोमिसेस, दीज आर प्लेजेस। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसेस एंड प्लेजेस। Promises are meant to be broken, pledges are meant to be kept. And जितना भी हम लोग आपको 10 प्लेज का मैनिफेस्टो रिलीज करके आपके सामने रखा है, हम लोग मर जाएंगे लेकिन ये 10 चीज 3 महीना के अंदर एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है आपको। अगर सरकार चाहे तो नहीं करने वाली कोई बात नहीं है, सब कर सकता है, भाई के इरादे होने चाहिए। आप देखो असम और मेघालय में जो मुकरो का इंसिडेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट पूरा देश में नहीं हुआ। 3 महीना हो गया, जो ऑफिसर्स ने गोली चलाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उनको इन्वेस्टिगेशन में बुलाया गया। भाई मेघालय का चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप चीफ मिनिस्टर हो, आपका कुछ जिम्मेदारी लोगों के प्रति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपके प्रदेश के लोगों के ऊपर अगर फायरिंग हो रहा है और बेवजह गोलियां चल रही है, जानबूझ के मासूमों को मारा जा रहा है, तो आप चीफ मिनिस्टर होने का फायदा क्या है? आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप किस हक से लोगों के पास जा रहे हो? आप किस मुंह से लोगों के पास जा रहे हो? Bengal also shares its states border with states like Jharkhand, Odisha. Meghalaya shares its state border with Assam. जैसे मेघालय अपना स्टेट का बॉर्डर असम से शेयर करता है, वैसे बंगाल भी अपना स्टेट का बॉर्डर एक तरफ असम, एक तरफ झारखंड, एक तरफ उड़ीसा, ये सारे स्टेट से शेयर करता है। किसी का हिम्मत है कि बंगाल में ऐसा करके दिखाएगा? किसी का हिम्मत है, चाहे उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, असम का हो, कि गोली चलाएगा बंगाल के 5 लोगों के ऊपर? सोचने की हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का नाम ममता बनर्जी है। और यहां पे पता है चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं करेगा, इसलिए मासूमों को मारो। जिन्होंने हत्या किया एक नोटिस तक उनको भेजा नहीं गया। आप किस लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में टिके हुए हो? आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं भेजा मैं आपको बताता हूं। क्यों इसका कार्रवाई नहीं होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर कार्रवाई जिस दिन शुरू हुआ, असम में जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है वो बीजेपी का आदमी है, केंद्र में सरकार बीजेपी का है। जिस दिन यहां का मुख्यमंत्री नोटिस भेजा असम को, अगला दिन ईडी नोटिस भेजेगा कॉनराड को। तो ईडी और सीबीआई से बचने के लिए और अपना जितना 2 नंबरी का धंधा है ये सब चलाने के लिए और पैसा रोकने के लिए, पैसा बचाने के लिए वो अपने लोगों की कुर्बानी दे रहे हैं।
ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए इस प्रदेश को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहिए? आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपके लिए खड़ा रहे, जो आपके लिए लड़े, जो आपके लिए जिंदगी दांव पे लगा के जान झोंके में डाल के आपके लिए काम करे, आखिरी बूंद तक खून का आपके लिए काम करे। मुख्यमंत्री वो होता है। हमेशा मेघालय को दिल्ली के आगे झुकना क्यों पड़ेगा? हमेशा मेघालय को असम के आगे झुकना क्यों पड़ेगा? लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, मुझे इस बात में भी आपत्ति है। मैं समझता हूं मेघालय नॉर्थ ईस्ट नहीं, मेघालय ईस्ट का हिस्सा है। आप देश में कहीं भी चले जाओ, गुजरात को तो लोग नॉर्थ वेस्ट नहीं कहते, कई राज्यों को तो साउथ ईस्ट नहीं कहते, किसी को साउथ वेस्ट नहीं कहते हैं। तो ये जो छोटे 4-5 स्टेट है, इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहेगा? दे आर अ पार्ट ऑफ द ईस्ट। और सूरज जैसे ईस्ट में उगता है, इस बार भी देश का भविष्य ईस्ट से उगेगा। एंड बंगाल हैज शोन द वे। मेघालय हैज टू फॉलो सूट। मेघालय हैज टू प्रूव हिज मेटल एंड माइंड टू द वर्ल्ड कि हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। आप मुझे बताओ, आई वॉज आस्किंग डॉक्टर मुकुल एज आई वॉज वॉकिंग पास्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट ऑफिस, द ट्रेजरी ऑफिस, the DIG office, Tuda police station, the entire stretch is, completely merged in darkness. There's no light. There's no arrangement for street lights on either sides of line of the roads. So I asked him, does this constituency belong to Conrad? Dr. Mukul said yes. आप अपने आप से पूछो कि 2 कदम आगे चलो, पूरा रास्ता अंधेरा है। अरे जो चीफ मिनिस्टर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोशनी नहीं लगा पाया, वो रोशनी कहां से स्टेट में लाएगा? जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट नहीं ला पाया, वो स्टेट में कहां से डेवलपमेंट लाएगा? जो पूरा मेघालय में एक मेडिकल कॉलेज नहीं कर पाया, अस्पताल के आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, everything is in shambles, in doldrums. Shillong Medical College is existing only in paper. They announced of forming Tuda Medical College. It's also in doldrums. आपको पता है बंगाल में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? बंगाल में 23 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 गवर्नमेंट और 7 प्राइवेट। और बंगाल में कितना डिस्ट्रिक्ट है? बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है। उस हिसाब से मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो कितने मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए? अभी तक एक नहीं है। ये है आपका डबल इंजन सरकार का नमूना। ये है डबल इंजन सरकार का एग्जाम्पल कि ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना लोगों के पास पैसा है। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी करके पूरा इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। আমরা চেয়েছিলাম কালো টাকা বন্ধ হোক, কিন্তু গরিব মানুষের চোখে জল ফেলে নয়। যারা এক বুক স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন 2016 সালের নভেম্বর মাসে যে কালো টাকা ধ্বংস হবে, 150 জন প্রাণ দিয়েছে। ছোট বড় ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়িক বিক্রেতা যাদের ব্যবসা লাটে উঠেছে এই ভারতীয় জনতা পার্টির জনবিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে একদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি। একদিনের জন্য রাজ্যের দাবি দেওয়া নিয়ে দিল্লির বুকে দরবার করতে দেখা যায়নি। একদিনও মানুষের জন্য আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। মানুষের সুখ দুঃখের কথা নিয়ে সরব হতে দেখা যায়নি। আপনাদের এত রাজনৈতিক দল এখানে রয়েছে, কংগ্রেস রয়েছে, ইউডিপি রয়েছে, এনপিপি রয়েছে, বিজেপি রয়েছে, তৃণমূল রয়েছে। একমাত্র দাবি দেওয়া নিয়ে কে রাস্তায় নামছে? তৃণমূল কংগ্রেস। ভারতবর্ষে সব মিলিয়ে 1700 রাজনৈতিক দল রয়েছে, মাথায় রাখবেন। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে যদি কেউ লড়াই করে সেই রাজনৈতিক দলের নাম হচ্ছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ধমকে চমকে চোখ রাঙিয়ে লাল চক্ষু দেখিয়ে আমাদের আটকাতে পারেনি।
আর আমরা কারোর কাছে দিল্লি, গুজরাট আর মধ্যপ্রদেশের নেতাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিনি, আত্মসমর্পণ করিনি, মেরুদণ্ড বিক্রি করিনি। আমরা আন্দোলনের রাস্তা, প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিয়েছি, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ে নেমেছি। বাংলা পথ দেখিয়েছে। মেঘালয়ে আমরা এসেছি, ডক্টর মুকুল সাংমা থেকে শুরু করে যারা আমাদের দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে এক মঞ্চে এসছেন, সবাই আমরা কংগ্রেস করে রাজনীতি শুরু করেছি। আমাদের রাজনৈতিক অধ্যায়, আমাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কংগ্রেসের হাত ধরে শুরু। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে যদি আপনাকে লড়তে হয়, খালি বড় বড় ভাষণ দিয়ে হবে না, মাঠে ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লড়ে দেখাতে হবে। যেটা বাংলায় করে দেখিয়েছে। একটা মহিলা তার পা ভেঙে দিয়েছে নির্বাচনের 1 মাস আগে, তাও ভাঙা পায়ে হুইল চেয়ারে করে প্রচার করে আপনাদের আশীর্বাদকে পাথেয় পথ চলার প্রেরণা করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে লেজে গোবরে মুখে চুনকালি লাগিয়ে রাজ্য ছাড়া করেছে। এমন রাজনৈতিক দল আর দেখাতে পারবেন না। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে তৃণমূল কংগ্রেস যা কথা দেয় কথা রাখে। আমরা ভোট পাখির মতো ভোটের সময় আসি আর ভোট হলে কেটে পড়ি, টাটা বাই বাই, সে রাজনীতি করি না। আমরা যা কথা দিই আমরা কথা রাখি। আমরা যদি লক্ষ্মীর ভান্ডার বাংলায় করি, আমরা এখানেও করব। এমন তো নয় আমরা বলছি যে আমাদের সুযোগ দিন আমরা করে দেখাবো। আমরা বলছি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজের হিসাব নিই, আর আগামী দিন জোটবদ্ধ হয়ে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিই। आगामी 27 तारीख, ये 27 तारीख को आने वाले फरवरी महीने में आपको लगता होगा कि भाई मेरा एक वोट से क्या होगा, मैं वोट दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई आपका ये मौका 5 साल में नहीं आएगा। आप सोचते हो कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, तरक्की नहीं हो रहा है, काला धन बढ़ गया, मेघालय में कोई विकास नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। इतना बड़ा टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन है, उसको अगर ठीक से डेवलपमेंट किया जाए तो क्या नहीं कर सकता। कुछ नहीं हुआ तो 27 तारीख को ये आपका मौका है कि इनको सबक सिखाने का। ये मौका गंवाना नहीं है। जिसको भी लगता है कि भाई मेरा एक वोट से क्या होगा, मैं घर में बैठूंगा, आराम करूंगा, जाऊंगा नहीं, लाइन में कौन खड़ा होगा, वोट कौन डालेगा। भाई आप आने वाला घर, अपने भविष्य का 5 साल किसको दोगे वो आपको सोच समझ के तय करना है। जो काम करके दिखाया है या जो बातों से गुमराह किया है, ये आपको तय करना है। आपको तय करना है कि आने वाला 5 साल जुमले में डालना है या अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वोट डालना है। आपको तय करना है कि आने वाला 5 साल मैं ऐसे एक नेता के लिए वोट करूं जो जी हुजूरी करे दिल्ली जाके, या ऐसा एक नेता के लिए वोट करूं जो अपनी हक की लड़ाई लड़के मेघालय का अधिकार दिल्ली से छीन के ले आए। वो सिद्धांत आपको 27 तारीख को लेना है। मैं ऐसा एक नेता चाहता हूं, ऐसा एक लीडर चाहता हूं, ऐसा एक पार्टी चाहता हूं जो बिकेगा नहीं, जो सर नहीं झुकाएगा, जो कुछ भी हो अपना कुर्बानी नहीं देगा, जो कुछ भी हो अपना भरोसे का बंधन को नहीं तोड़ेगा, कुछ भी हो मेरा जो वोट का मेरा जो ट्रस्ट है उसको नहीं तोड़ेगा। आपको वो सोचना चाहिए। आप देखो इतने पॉलिटिकल पार्टी है, आपने देखा गोवा में क्या हुआ। गोवा में भी हम लोग लड़ाई करने गए। हम लोग कहा कि भाई किसी को वोट मत दो, अगर कांग्रेस को वोट दोगे सारे एमएलए भाग जाएंगे। वही हुआ। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि एनपीपी को तो छोड़ दो, एनपीपी का तो वोट है ही नहीं। एंड व्हेन आई फर्स्ट केम टू गारो एंड तुड़ा 2 months back, I categorically said that mark my words and make no mistake, NPP will draw a blank from Garo. There are 24 seats. There are 24 seats from this Garo hills. Conrad Sangma is losing his own seat. I can give it to you in written. 6 महीना पहले वो कहते थे भाई तृणमूल का तो कोई बेस ही नहीं होता है, तृणमूल का क्या है, कुछ नहीं है। अभी उनका स्टेटमेंट देखो, भाषण देखो, ट्वीट देखो, दिन शुरू होता है तृणमूल से, रात खत्म होता है तृणमूल से।
टीएमसी को अटैक करने जा रहे हैं। दिस इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट हाउ bewildered, how puzzled, how rattled he is. I will ask each and every one of you to bless us, our candidates, Lazarus Sangma, Rupert, Richard, everyone. When you press that button beside the twin flowers, it's not just voting for Trinamool Congress. It's not just voting for the self-respect of Meghalayan's. It's not just voting to bring back the glory of the state back. It's voting for your own future. It's voting for Mamata Banerjee directly. Keep that in mind. अगर आप ट्विन फ्लावर्स वाला सिंबल पे अर्थात दो फूल वाला सिंबल पे बटन दबाते हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, वो वोट सीधा बीजेपी के खिलाफ है, एनपीपी के खिलाफ है और ममता बनर्जी के लिए। वो वोट सीधा उनका हाथ और सशक्त बनाने के लिए। तो आपको सिद्धांत लेना है 27 तारीख को आप जब अपना वोट दान करने जाओगे तो आप किसके पक्ष में वोट दोगे, और तृणमूल को वोट दो और अपना हाथ शक्तिशाली करो। मैं आपको वादा करता हूं कि मेघालय का ताकत क्या है हम इनको दिखा के रहेंगे। बंगाल में हम लोग दिखाया है ना, आप देखो पूरा कैबिनेट उतार दिया था 3 महीने से, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स है, सबको उतार दिया। गवर्नर का ऑफिस का मिसयूज किया, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया, जुडिशियरी का मिसयूज किया, सब कुछ किया। और पूरा देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है और कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं महिला को, मेरा जितना भी महिलाएं, बहनें, माताएं रहेंगी यहां पे, मैं सबको नोट करूंगा कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए। एक महिला का जो ताकत होता है वो बहुत है। अगर आप किसी को सबक सिखाना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि भाई युवकों के पास नौकरी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, रास्ते नहीं है। तो इस बार एनपीपी को वोट दोगे कि तृणमूल को वोट दोगे? जरा आवाज ऊंची करके मुझे बताना, किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? Are you going to vote for NPP or you are going to vote for Twin Flowers of Trinamool, Meghalaya TMC? Tell me. Twin Flowers or NPP? TMC or NPP? TMC or NPP? Raise your voice louder. TMC or NPP? TMC or NPP? I can't hear much from this side. TMC or NPP? TMC or NPP? Are you giving your word? 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 TMC or NPP? TMC or NPP? A true leader or a puppet? A true leader or a puppet? What do you want? A true leader or a shameless puppet? Who do you want? Raise your hand and tell me, a true leader or a shameless puppet? True leader. A true leader or a shameless puppet? True leader. A true leader or a shameless puppet? True leader. Will Meghalaya choose its own self-respect or will it bow down before Delhi and Guwahati? This is a decision you have to make on the 27th of February. It's not just a decision of your own future, it's a decision of the state. And give us 5 years. This is my word to you. Didi is coming to Meghalaya again on the 22nd of February. She has given her word that come what may, we will fight till the last drop of our blood, but will leave no stone unturned in ensuring Meghalaya's all-round development. This is our word to you. This is my word to you. मैं आप सबको ये वचन देके जाता हूं, ये कमिटमेंट करके, ये प्रॉमिस करके जाता हूं कि आपका एक वोट खाली हमारे लिए वोट नहीं है। हमारे लिए आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका दुआ, आपका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा है। और इस संघर्ष वाली रास्ते में हम जैसे लड़ रहे हैं उसी हिसाब से आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। खाली आपका प्यार चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए।
और वो आप करो। जितना भी वादा हम लोग ने 10 प्लेजेस किया है, 10 pledges of TMC for Meghalaya, I will ensure that all the 10 pledges are implemented and turned into reality in the next 3 months after forming the government. और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं एक चीज और, मैंने मुखड़ों की बात की कि 3 महीना हो गया अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। तृणमूल गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और 1 महीने के अंदर चाहे कोई भी ऑफिसर हो, उसका सर पे किसी भी मंत्री का हाथ हो, उसको कॉलर पकड़ के अंदर करवाएंगे। किसी का अगर मौत के लिए वो जिम्मेदार है, उसको कोई नहीं छोड़ेगा। तृणमूल सरकार बनाएगा, 1 महीने के अंदर पाताल चीड़ के उसको लेके आएंगे। एनपीपी का सरकार उखाड़ के फेंकने के बाद, ये भी मेरा वचन है आप सबसे कि मेघालय में अपना हक के लिए वो लड़ाई शुरू हो चुका है। और इस लड़ाई में यहां पे मैं देख रहा हूं सेंट्रल फोर्सेस के भी जवान तैनात है। ये जवानों को देखो, ये जिस मानसिकता के साथ लड़ता है ना, उसी मानसिकता के साथ हम लोग को ये लड़ाई लड़नी है। ये जिस तिरंगे के लिए लड़ता है, वो सोचता है ये तिरंगा में या तो मैं ये तिरंगा लहरा के आऊंगा या तो इस तिरंगा में लपेट के आऊंगा। तो हम लोग जिस मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, जिस स्टेट का सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, जिस प्रदेश का शान के लिए लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में या तो उस तिरंगा के लिए हम लोग लहरा के आएंगे और मेघालय का तिरंगा, मेघालय का झंडा हर प्रदेश में लहराएगा, पूरा भारत में लहराएगा। यही वचन आप सबको मैं देके जाता हूं और यही आप सब लोग को वादा करके आज का मीटिंग से वापस जाना है। और जितने भी लोग हैं, आपके मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, दोस्त हो, आप सबको बताओ कि 5 साल आप देखो, एक के बाद एक घटना हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी के अच्छे दिन नहीं आए, खाली गिने चुने 4-5 नेताओं के आए, उसमें से दिल्ली के कुछ नेता और यहां का एक चंद परिवार। और किसी के अच्छे दिन नहीं आए, बहुत भाषण दिया, खाली भाषण नहीं, इस बार राशन भी चाहिए और भाषण को हकीकत में बदलने वाली नेता भी चाहिए, नेतृत्व भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन हु हैज वॉक्ड विथ अस, हु हैज blessed us with this, with their love, support and unwavering faith and blessings. I thank each one of you. We have only 15 days in hand. Make sure that you are able to utilize every split second of these 15 days and oust the corrupt, inept, inefficient NPP government of power and teach them a lesson that they will remember for the rest of their life. Many, many thanks. Mithila, Trinamool Congress Zindabad.